স্টার্ট করছি সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু রাউটার্স। মানে আজকে আমরা ঢুকছি, আসল জায়গাটায় আমরা আজকে ঢুকছি। প্রথম হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু রাউটার্স। আমি ঢুকলাম। কি বলছে বেসিক্যালি রাউটার জিনিসটা কি? আমরা বলেছিলাম আগের দিন, লাস্ট সেদিন আমাদের আলোচনা হয়েছিল যে রাউটার বেসিক্যালি একটা ডিভাইস। বেসিক্যালি রাউটার ইজ এ ডিভাইস which belongs to network layer or layer 3. Then what are the functions that router executes? কি কি কাজ রাউটার করে? আমি জাস্ট এই জায়গাটাকে একটু রিপিট করছি, মানে একটু নিয়ে আসছি। বেসিক্যালি দিজ আর দ্য ফাংশনস। বেসিক্যালি দিজ আর দ্য ফাংশনস। এই কটা ফাংশন এক্সিকিউট করে রাউটার। এটা আমি বোধহয় বলেছিলাম, আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি যে কি হচ্ছে ব্যাপারটা। ইফ ইউ হ্যাভ মোর দ্যান ওয়ান নেটওয়ার্ক, rather I should use more than one different network. যদি আমার ডিফারেন্ট ক্যাটেগরি নেটওয়ার্ক থাকে, সাপোজ I have a class A and class B and class C, class A, class B, class B, class C, class A, class C. So multiple types of classes of network if we have, and if we want to communicate with each other from one network to another network, then it is not possible through the switch, because due to some restrictions that is not possible. So which device will execute this function? The router. The router has the capability to transmit, but to transmit the data from one class of network to the another class. এটা হচ্ছে একটা কারণ। আর একটা কারণ কি আছে এখানে, আরেকটা পয়েন্ট এখানে অ্যাড করে দিই। সাপোজ ইউ হ্যাভ টু নেটওয়ার্কস। একটা হচ্ছে কি 192.168.100.0/24 network. Another network is 192.168.0.0/24 network. So both networks belong to class C. So automatically you may answer, sir, in this type of network there is no need of using any router. Apparently it looks like that, but if you carefully note, then you must find that 24-bit masking means the network bit. How many bits are in the network bit? মানে আমি দুটো নেটওয়ার্ক ক্লাস তোমাদের বলেছি, কি বল মানে নেটওয়ার্ক ক্লাস বলছি, সরি, দুটো নেটওয়ার্ক আইডি বলেছি। কি কি বলেছি? 192.168.100.0 একটা নেটওয়ার্ক, একটা হচ্ছে 192.168.0.0 একটা नेटवर्क। ये দুটো नेटवर्क। तो तुम्हारे पास क्या है? दो नेटवर्क है। एक है 192.168.100/24 मतलब 8-बिट मास्किंग, क्या है 24-बिट मास्किंग, और एक नेटवर्क है 192.168.0.0, वो भी 24-बिट मास्किंग है। तो ये नॉर्मली लगेगा कि भाई ये तो ये भी क्लास सी, ये भी क्लास सी, तो इसमें तो कोई राउटर का जरूरत नहीं है। अगर इस नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क में डेटा जाना है तो भाई चले जाओ नॉर्मल स्विच के थ्रू से, राउटर तो नहीं लगेगा। बट इट रिक्वायर्स द राउटर। व्हाई? बिकॉज इफ यू केयरफुली नोट, কি বলেছি আমি 192.168.100.0/24। 24 মানে কি 3 × 24, মানে প্রথম তিনটে অক্টেট আমার নেটওয়ার্ক পার্টে আছে দুটোরই। তাহলে তুমি দেখো প্রথম দুটো অক্টেটের ভ্যালু কিন্তু দুটোর ক্ষেত্রেই সেম 192.168, কিন্তু থার্ড যে অক্টেটটা, থার্ড অক্টেটটায় একটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে 100, একটার হচ্ছে 0, একটা হচ্ছে 100, অ্যানাদার ইজ 0। তার মানে টোটাল যে তিনটের অক্টেট নেটওয়ার্ক পার্টে আছে তার থার্ড অক্টেটটা ডিফার করছে, মানে টোটাল নেটওয়ার্ক আইডিটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দুটো আলাদা। तुम्हारे पास जो नेटवर्क है वो है 192.168.100.0 नेटवर्क, और एक है 192.168.0.0 नेटवर्क। तो ये जो थर्ड जो ऑक्टेट है उसमें देखो एक के अंदर है 100, एक के अंदर है 0, सो ऑटोमेटिकली तुम्हारा नेटवर्क आईडी डिफर हो गया।
as the network ID differs, so automatically you need the router. No packet will travel directly from one network to another. তার মানে আমরা যেটা এতক্ষণ বলছিলাম যে ডিফারেন্ট ক্লাসের নেটওয়ার্কের মধ্যে রাউটার লাগে, সেটাকেও একটু কারেকশন করতে হচ্ছে। ডিফারেন্ট ক্লাসের মধ্যে তো নেটওয়ার্ক লাগবে, রাউটার তো লাগবেই, প্লাস সেম ক্লাস হ্যাভিং ডিফারেন্ট সাবনেট আইডি, ইট রিকোয়ার্স অলসো দ্য রাউটার। এটুকুকে আমি বোঝাতে পেরেছি না পারিনি? আগে বলো, ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? Yes, sir. ওকে, কেউ একজন এলো মনে হচ্ছে, দেখছি সৌমাল্য কেন লগ ইন করছে বাইরে থেকে। ওকে, সো first function of the router is this. The second function is router does not transmit any broadcast from one network to the another network. ধরে নাও একটা রাউটার আছে, রাউটারের দুটো হাত, এক হাতে একটা নেটওয়ার্ক আর এক হাতে আরেকটা নেটওয়ার্ক আছে। তাহলে এই যে দুটো নেটওয়ার্ক রয়েছে, কোনো একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে ধরো বাঁ হাতে যে নেটওয়ার্কটা আছে সেখানে কোনো একটা নোড, ওয়ান মোমেন্ট, ওকে। সো তাহলে কি হচ্ছে, আবার রাউটারের দুটো হাত, একদিকে একটা হাত, সেদিকে একটা তোমার নেটওয়ার্ক চলছে, সেকেন্ড দিকে আর একটা হাত, সেখানে একটা নেটওয়ার্ক চলছে। ধরে যাক লেফট সাইডে যে নেটওয়ার্ক, সেখানে একটা কোনো সার্ভার আছে বা কিছু আছে, সে একটা ব্রডকাস্ট মেরে দিল। সেই ব্রডকাস্টটা কিন্তু ওই নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকবে, রাউটারের এই যে রাউটার কিন্তু ওই ব্রডকাস্টটাকে এই দিক থেকে এদিকে পাস করবে না। সিমিলারলি রাইট সাইডে যে নেটওয়ার্কটা আছে, সেখানে কোনো একটা ব্রডকাস্ট যদি ইস্যু হয়, राउटर এসে আটকে যাবে, এদিকে যাবে না। समझ लो राउटर का दो हाथ है, एक हाथ में एक नेटवर्क कनेक्टेड है, दूसरा हाथ में और एक नेटवर्क कनेक्टेड है। समझ लो राइट साइड में जो हाथ है उसमें उसका कोई सर्वर है, उसमें कोई वहां से ब्रॉडकास्ट सेंड कर दिया, राउटर कभी भी उस ब्रॉडकास्ट को इस साइड नहीं भेजेंगे। सिमिलरली इस तरफ जो नेटवर्क है, राउटर कभी भी इस तरफ का नेटवर्क उस तरफ नहीं भेजेंगे। So that is why it is called that router blocks the broadcasting, or more technically if you say answer, router breaks the broadcast domain. What is broadcast domain? That is a very, very favorite question of interviewer. What is broadcast domain? Broadcast domain মানে হচ্ছে কোনো একটা মেশিন যদি ব্রডকাস্টটা সেন্ড করে, তাহলে সেই ব্রডকাস্ট মেসেজটা কতখানি এরিয়ার মধ্যে, মানে কত জোনের মধ্যে ওটা কনফাইন্ড থাকবে। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन मीन्स समझ लो कि एक कोई भी एक मशीन नोड समझ लो एक ब्रॉडकास्ट सेंड कर दिया, तो वो ब्रॉडकास्ट कितना मशीन के अंदर ही रहेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए ब्रॉडकास्ट डोमेन, जिसके अंदर वो ब्रॉडकास्ट सर्कुलेट होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई भी नेटवर्क से कोई भी नोड एक ब्रॉडकास्ट सेंड कर देगा, तो ब्रॉडकास्ट राउटर क्या करेगा, बीच में है, राउटर इस ब्रॉडकास्ट को इस यहाँ पर, इस ब्रॉडकास्ट को यहाँ पर नहीं भेजेंगे। इसीलिए कहते हैं राउटर ब्रेक्स द ब्रॉडकास्ट डोमेन। আমি বোঝাতে পারলাম কি ব্যাপারটা? Am I clear or not? Yes, sir. These are the very fundamental things. Okay. So that is why the first point, look at this first point. The do not forward broadcasts by default. It saves the bandwidth of the network. Continuous যদি broadcast যাতায়াত করে, if the broadcast continuous flows through the router, if then there is a possibility of huge congestion. So router blocks that congestion. So automatically router speeds up the network flowability.
The second one, they can filter the network based layer 3 information, IP address. It can filter. If you configure the router, that for incoming data, you allow this IP address, you don't allow this IP address. Similarly, from outgoing packet, you allow this IP address, you disallow this IP address. So you have the right to select it. मतलब क्या होता है, तुम बोल सकते हो कि भाई मेरा राउटर से जब भी डेटा बाहर जाएगा, ये आईपी एड्रेस और ये नेटवर्क से डेटा बाहर जाएगा, अंदर नहीं आएगा. और बाहर से पर्टिकुलर तुम बोल सकते हो कि ये नेटवर्क से डेटा मेरा नेटवर्क के अंदर आएगा, बाकी नहीं आएगा. You can filter it. So that is why the second point is this, that they can filter the network based on layer 3 information. फिल्टर कर देते हैं, जैसे कि फिल्टर वह होता है ना, जो जहां पे तुम बोल सकते हो भाई ये रहो, ये चला जाओ. That is the process. Third one is the packet switching. What is packet switching? मैंने बोला था वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन है स्विचिंग, उसके अंदर एक था पैकेट स्विचिंग. पैकेट को स्विच करना, प्रॉपर सोर्स से प्रॉपर डेस्टिनेशन तक भेजना पैकेट को, दैट इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग. ये काम भी राउटर के पास होता है, क्योंकि समझ लो राउटर का 4 हाथ है, 4 हाथ में 4 नेटवर्क है. हो सकता है कि जिसमें एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क में जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउटर देख लेगा कि भाई कहां से आ रहा है, कौन सा नेटवर्क में भेजना है, स्ट्रेट वे स्विच करके उस नेटवर्क को भेज दिया, चला गया. दैट इज द पैकेट स्विचिंग. पैकेट क्यों बोल रहा है? क्योंकि राउटर नेटवर्क में लेयर का डिवाइस है. नेटवर्क लेयर में कोई भी डेटा को कहते हैं पैकेट, और ये डेटा स्विचिंग हो रहा है तो इसलिए इसे पैकेट स्विचिंग कहते हैं. আমার নেটওয়ার্ক লেয়ারের যখন ডেটাটা আসে সেই ডেটাকে আমরা বলি প্যাকেট. তো রাউটার কি করছে, প্রপার সোর্স থেকে আমার 4টে সোর্স আছে, আমার সঙ্গে 4টে নেটওয়ার্ক কানেক্টেড আছে. এবার একটা দেখা গেল 1 নম্বর নেটওয়ার্ক 4 নম্বর নেটওয়ার্কে কোনো ডেটাটা পাঠাবে, রাউটারের কাছে টেবিল আছে, ও টেবিলে দেখে নিচ্ছে কোন ইন্টারফেসে কোন নেটওয়ার্ক কানেক্টেড, ও ডিরেক্টলি প্যাকেটটাকে সেই নেটওয়ার্কে ফেলে দিচ্ছে. তার মানে কি, সোর্স থেকে প্রপার ডেস্টিনেশনে ফেলে দিচ্ছে, মানে সুইচিং হচ্ছে. কি সুইচিং হচ্ছে না, এখানে ডেটাটা কি না, নেটওয়ার্ক লেয়ারে ডেটাকে বলা হয় প্যাকেট. সো দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ কল্ড প্যাকেট সুইচিং. প্যাকেটটা চলে যাচ্ছে. Am I clear? Yes, sir. Okay. Next is বলছে প্যাকেট ফিল্টারিং. অনেকটা সেকেন্ড পয়েন্টের মতো, জাস্ট লাইক সেকেন্ড পয়েন্ট. প্যাকেট ফিল্টারিং তুমি কিভাবে করতে পারো? তুমি বলে দিতে পারো পার্টিকুলার ফ্রম দিস নোড আই উইল অ্যাকসেপ্ট দ্য প্যাকেট, পার্টিকুলার দিস নোড আই ওন্ট অ্যাকসেপ্ট প্যাকেট. 1 নম্বর এটা বলতে পারো. উল্টো দিক থেকে বলতে পারো যে আমি অমুক অমুক নোড থেকে প্যাকেট যেতে দেব, অমুক অমুক নোড থেকে প্যাকেটটাকে যেতে ফ্লো করতে দেব না. So packet filtering means you have the right to filter any packet for the incoming data as well as for the outgoing data. जो डेटा तुम्हारा नेटवर्क से बाहर जा रहा है, राउटर से बाहर जा रहा है, वो आउटगोइंग पैकेट है, उसके ऊपर तुम पैकेट फिल्टरिंग कर सकते हो कि ये पैकेट बाहर नहीं जाएगा. और कुछ डेटा है, जो कुछ नेटवर्क है जो बाहर से डेटा भेजेंगे तुम्हारा नेटवर्क में, तो राउटर के ऊपर वो भी रूल अप्लाई कर दो कि भाई तुम जब कोई भी इनकमिंग पैकेट मेरा नेटवर्क के अंदर आएगा तो इस नेटवर्क को अलाउ करो डेटा भेजने के लिए, इस नेटवर्क को डिसअलाउ करो डेटा भेजने के लिए. तो दैट इज द पैकेट फिल्टरिंग. उसमें आईपी एड्रेस को छोड़कर भी बहुत सारे चीज होता है, कौन सा सर्विस तुम इस्तेमाल कर रहे हो, पोर्ट फिल्टरिंग, पोर्ट एड्रेसिंग, सब कुछ ये पैकेट फिल्टरिंग के अंदर चले जाता है. नेक्स्ट इज द इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन. दैट इज वेरी सिंपल. ये तो एडवांटेज ही है, इसका फंक्शन भी है. इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, तुम्हारा एक राउटर है, दूसरा एक राउटर है, इसने राउटर के साथ जुड़ा हुआ है कोई कनेक्टिविटी, अनदर राउटर है, उसमें भी कोई नेटवर्क है. प्रॉपर्ली इफ यू कॉन्फ़िगर इट फ्रॉम दिस नेटवर्क, दिस राउटर के थ्रू से उस राउटर को होकर डेटा चला गया, तो ये प्रॉपर इंटर नेटवर्क जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, अगर ये
ठीक तरह से एस्टाब्लिश्ड होगा तो पैकेट ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होगा। তোমার যদি নেটওয়ার্কটা ঠিকমতো কনফিগার করা থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি ও কি করবে, ওর প্রপার নেটওয়ার্কের সঙ্গে প্রপার নেটওয়ার্কের রাউটারের থ্রু দিয়ে ডেটাগুলোকে সেন্ড করে দেবে বা রিসিভ করবে। নেক্সট ইজ দ্য পাথ সিলেকশন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাপোজ তুমি এখান থেকে একটা জায়গায় যাচ্ছ, তোমার কাছে একটাই রুট, সেখানে তোমার সিলেকশনের কোনো জায়গা নেই, তোমাকে ওটাই করতে হবে। যেমন ধরো আমি কথার কথা বলছি, উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর দেখা গেল তোমার কাছে একটাই অপশন আছে, তোমাকে সায়েন্স বা আর্টস বা কমার্স পড়তে হবে, তোমার সেটাই পড়তে হবে। কিন্তু যখন উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর তুমি দেখছো তোমার কাছে অনেকগুলো অপশন আছে, তখন তুমি কোনো প্যারামিটার চিন্তা করে তুমি সেই অপশনটাকে চুজ করলে। যেমন তুমি এই ধরো এই কোর্সটাকে চুজ করেছো কোনো একটা প্যারামিটারকে চিন্তা করে। তোমার এক বন্ধু হয়তো দেখা গেল সে বিএসসি নর্মাল সায়েন্স নিয়েছে, একজন হয়তো তোমারই বন্ধু বিকম নিয়েছে, তারপর তারা কিছু প্যারামিটার নিয়ে তোমরা তিনজনেই কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন করছো, কিন্তু रूट सिलेक्शन होच्छे डिफरेंट पैरामीटर ऊपर चिंता करे। सो पाथ सिलेक्शन क्या है, समझ लो कि तुम इस कोर्स में ज्वाइन किए, क्यों किया, तुम्हारा एक गोल है, तुम बोल सकते हो कि मेरा ये चाहिए, इसमें ये इसका मेरिट्स है, सो इसीलिए हमने चूज किया कि भाई बीएससी एडवांस नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी में हमको एडमिशन लेना है। तुम्हारी कोई भी फ्रेंड दूसरा जगह बीकॉम में एडमिशन लिया, बीए में एडमिशन लिया, बीएससी में एडमिशन लिया, उसका भी कोई गोल है, उसका भी कोई पैरामीटर्स है उसके ऊपर। लेकिन अगर ये नहीं होता, इसके जगह एक ही सब्जेक्ट होता ऑल ओवर द वेस्ट बंगाल और इंडिया, तो तुम्हारा कोई चॉइस का कोई चांस ही नहीं आता, वही करना पड़ता था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक नेटवर्क एक राउटर से दूसरा राउटर जाने के लिए अगर एक लिंक होगा तो उसका तो कोई चॉइस का कोई बात ही नहीं है, उसके थ्रू से ही तो डेटा भेजना पड़ेगा। मगर अगर तुम्हारा एक राउटर के पास से दूसरा राउटर के जाने के लिए मल्टीपल रूट्स होगा, नाउ द क्वेश्चन कम्स, देन यू हैव टू सिलेक्ट द राइट पाथ। तुमको पाथ सिलेक्शन तब करना है कि कौन सा पाथ में हमको जाना है। इट डिपेंड्स ऑन व्हिच प्रोटोकॉल यू आर यूजिंग, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल तुम इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, पैरामीटर्स भी अलग। हेलो कोई सुन पा रहा नहीं, मतलब शहर का चला गया। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है घर के साथ। ओए मनीष, हाँ बोल ठीक है, माइक चेक कर रहा था। बोल। हेलो हेलो अरे नहीं एकदम 5 अच्छा है। मैं भी सोच रहा था मेरा नेट गया। नहीं किसी का नेट मैं भी नहीं, यही सोच रहा था। शहर का कुछ हुआ। हेलो मैं सोच रहा सर का कैसे चला गया। ओए मनीष, सुनना एक प्रॉब्लम है। हाँ भाई बोल रहे हो कि राइजन 5 अच्छा है या i5 अच्छा है। बोल रहे हैं कि इनका प्रमोशन अभी सब अपने जगह अच्छा है। ভাই জেনারেশন রাইজেন 5 এর কত WXO सुना है तूने? सेकंड जनरेशन সেকেন্ড i5 তো i5 এর 8 জেনারেশন। হ্যাঁ অনেক বেটার। कौन-सा वाला अच्छा i3 ले ले 10 वाला। नहीं भाई i3 मॉडल है। सुन राइजन 5 का जो 10 जनरेशन अच्छा है भाई। राइजन का ये i5 के जनरेशन नहीं में डेडिकेटेड ग्राफिक्स है पर एंट्री लेवल का एन बिट का। हाँ 2GB राइजन तो कौन सा अच्छा है। রাইজেন 5 নিস তাহলে তুই রাইজেন 5 3600 বা রাইজেন 5 এর 3600 বা 4000 সিরিজ বা 3000 সিরিজটা নে, 2000 সিরিজটা নিবি না। मेरा भी पावर कट বুঝেছিস मनीष हाँ भाई WSL को सर्च मैं कर। साउंड सुन पा रहा हूँ बस।
हेलो। Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. So, actually, what is happening? The internet का communication path selection. So, path selection में क्या हुआ कि multiple route, समझ लो मेरा एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, लेकिन एक सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए बहुत सारे পাথস है। একটা সোর্স আছে, একটা ডেস্টিনেশন আছে, মানে আমার একটাই রাস্তা হলে কোনো চিন্তা নেই, আমাকে ওই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু যদি অনেকগুলো রাস্তা থাকে এখান থেকে যাওয়ার, তখন কিন্তু আমাকে রুটটা সিলেকশন করতে হবে। কোথাও কোথাও দেখবে sometimes you may get path selection, sometimes you may get route selection, both are same. So you have to choose the exact route to reach the destination. ये भी राउटर का काम है। एक प्रोटोकॉल होगा, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ये चलेगा कि भाई मेरा मल्टीपल रूट्स है, कौन सा रूट मेरे लिए बेहतर है, उस रूट में चला जाओ, पैकेट भेज दो। So it depends on the protocol, your routing protocol you may use. Okay. Next, it works on both LAN and WAN. Obviously, मेरा एक LAN है, उसके अंदर दो नेटवर्क है, मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर LAN चल रहा है, तो बीच में एक राउटर है, तो बिकॉज वी हैव मल्टीपल नेटवर्क्स, सो उसमें कनेक्टिविटी, राउटर मतलब ही WAN, ये ठीक नहीं है। राउटर WAN LAN में भी चलता है, क्योंकि मेरा एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर समझ लो कि मेरा दो ब्रांच है, दो ब्रांच के एक ही बिल्डिंग में, समझ लो एक ही बिल्डिंग में चल रहा है, तो दो टाइप का नेटवर्क चल रहा है, एक डिपार्टमेंट है एक टाइप का, दूसरा डिपार्टमेंट है और एक टाइप का नेटवर्क चल रहा है, तो बीच में राउटर हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, इट इज पॉसिबल। Parallelly, if you have a one connectivity, then obviously you require the router. So WAN and LAN, in both cases, router you can use. Next, the router uses the NAT. Basically, what is NAT? Network address translation. Actually, I will discuss in the last of the syllabus. What is network address translation? I'm just giving you a glimpse. ये जो नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क। আমরা যে নেটওয়ার্কটাকে ইউজ করি, এই যে আমরা 192 168 172 16 10 ডট সামথিং এই যে এগুলো বলছি, all these are private network. So anybody can use this network to configure its own private network. But when we are going to access internet, then the private network won't work. যখনই আমি ইন্টারনেট অ্যাক্সেসে যাব, তখন কিন্তু আর প্রাইভেট নেটওয়ার্ক চুক্কের কোনো গল্প থাকবে না, প্রাইভেট নেটওয়ার্ক আর ওখানে চলবে না, তখন কিন্তু ওটা পাবলিক নেটওয়ার্ক, কারণ ওটা ইন্টারনেটে যেটা চলে সেটা হচ্ছে পাবলিক নেটওয়ার্ক, গ্লোবাল নেটওয়ার্ক। তাহলে আমার এমন একটা প্রসেস মেথোডোলজি আমাকে রাখতে হবে
যে আমার যেমন প্রাইভেট নেটওয়ার্ক চলছে চলুক, কিন্তু যখনই আমি কমিউনিকেট করব ফ্রম দ্য প্রাইভেট নেটওয়ার্ক টু দ্য পাবলিক নেটওয়ার্ক, সো দেয়ার মে বি এ ট্রান্সলেশন নট কনভার্সন। রিমেম্বার, অনেকে বলে কি যে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক পাবলিক নেটওয়ার্কে কনভার্ট হচ্ছে, না কনভার্ট হয় না। কনভার্ট হয়ে যাওয়া তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, চেঞ্জ হয় না। আমার পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস থাকবে, রাউটার কি করছে সেটাকে জাস্ট ট্রান্সলেট করে বলে দিচ্ছে ভাই তুমি পাবলিকে চলে যাও। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন। নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটাকে प्राइवेट एड्रेस से ट्रांसलेट करे पब्लिक एड्रेस से फैले दीजिए। सो क्या होता है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है प्राइवेट एड्रेस। क्यों प्राइवेट एड्रेस? जो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल कर डोमेस्टिक एरिया में और इंडस्ट्री में, वो सब कुछ प्राइवेट नेटवर्क उसको कहते हैं। उसका एक फिक्स रेंज भी है, क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का, सब कुछ रेंज है। बट वन थिंग इज प्रॉब्लम कि जब ये इंटरनेट में तुम कनेक्ट करने के लिए जाओगे, इंटरनेट हो सकता है और पब्लिक, बेहतर है ये इस्तेमाल करना पब्लिक नेटवर्क, तब ये प्राइवेट आईपी एड्रेस वहां पर नहीं चलेगा। क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों नहीं चलेगा, तुम पूछ सकते हो कि सर ये क्यों नहीं चलेगा। इसीलिए समझ लो तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर एक नोड का आईपी एड्रेस है 172.16.0.100, तुमने पब्लिक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया, तो there is a possibility of having the same IP address in another location. So automatically there may be a conflict. तब बोला गया भाई ये प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट मतलब तुम्हारे लिए है, এটা তোমার জন্য আছে, তো তুমি তোমার মতো ইউজ করো, কোনো অসুবিধা নেই। বাট when you are going to join your private network to the public network, then there must be a translation, not conversion. Remember, অনেকে এটা ভুল বলে, রংলি ইউজ করে যে পাবলিক প্রাইভেট অ্যাড্রেস পাবলিকে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। কনভার্ট হয়ে যাওয়া মানে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, এটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না, এটাই থাকে, তার মিনিংটা ওখানে অন্য হয়ে যায়। प्राइवेट आईपी एलो, यहाँ पर प्राइवेट आईपी नेटवर्क चल रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बीच में है राउटर। राउटर क्या किया, प्राइवेट कौन सा एड्रेस से आ रहा है उसको ट्रांसलेट करके उसका पब्लिक आईपी एड्रेस बना दिया कि चलो भाई अब तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। दैट द राउटर डज, ये राउटर का काम है, नॉट कन्वर्शन। जैसे कि ट्रांसलेशन, जैसे कि समझ लो आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक इंग्लिश सेंटेंस है, बंगाली में इसका एक मीनिंग है, तुम्हारा हिंदी में भी एक मीनिंग है। मतलब इसका ट्रांसलेशन करने के बाद हिंदी में क्या कौन सा मीनिंग हो रहा है, दैट इज द ट्रांसलेशन। ये नहीं कि जब हिंदी बोल रहा है ये टोटली कन्वर्ट होके इसके अंदर चला गया, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसको तुम ट्रांसलेट कर रहे हो। सिमिलरली प्राइवेट आईपी एड्रेस आ गया, राउटर बीच में है, राउटर का काम है इस प्राइवेट को पब्लिक में, इसका कौन सा पब्लिक होना चाहिए उसमें डाल दिया, चलो भाई कम्युनिकेशन करो। ये चेंज नहीं हो रहा है, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सो दैट इज वाई डोंट यूज द टर्म कन्वर्शन, कन्वर्ट, ऑलवेज यूज द टर्म ट्रांसलेशन। सो ये एक स्पेशल टाइप का फीचर है जो कि राउटर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये है टोटल फंक्शंस दोज आर एग्जीक्यूटेड बाय द राउटर। एम आई क्लियर और नॉट? একটা কোশ্চেন ছিল, বলো। স্যার বলছি এই যে ফার্স্ট যে পয়েন্টটা, যে রাউটার কখনো ব্রডকাস্ট ডোমেন, স্যার ব্রডকাস্ট ফরওয়ার্ড ইস্যু করে না, স্যার আপনার ফরওয়ার্ড করে না, তো সেখানে কি আমি ফোর্সফুলি কখনো করতে পারি ব্রডকাস্ট করার জন্য? ব্রডকাস্ট করা যায়, কিন্তু রাউটারের যেন মনে না হয় ওটা ব্রডকাস্টিং হচ্ছে। যেমন আমি তোমার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, এটা তোমরা হয়তো নেক্সট সেমিস্টারেই পড়বে। সেটা হচ্ছে ডিএইচসিপি প্রোটোকলটা জানা আছে, ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ। ও কি করে, আইপি অ্যাড্রেসটা দেয় ক্লায়েন্টকে। এরকম হতেই পারে যে তোমার একদিকের নেটওয়ার্কে ডিএইচসিপি সার্ভার আছে, আর একদিকের নেটওয়ার্কে আইপি আছে, ক্লায়েন্ট আছে, সে রাউটারের থ্রু দিয়ে সে আইপি চাইছে। এই যে ডিএইচসিপি আইপি দিচ্ছে আর আইপি চাইছে, এই টোটালটা হয় ব্রডকাস্ট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে। তাহলে কি করে রাউটার এটাকে অ্যাকোমোডেট করে? ওখানে একটা প্রসেস আছে যেখানে কি হয়, এই ব্রডকাস্টটাকে র্যাপ ঢেকে দেওয়া হয়, র্যাপ করে দেওয়া হয় ইউনিকাস্ট মোডে। তারপরে রাউটার বুঝে না যেটা ইউনিকাস্ট প্যাকেট যাচ্ছে, কিন্তু ওটা ঢাকা থাকে। মানে আমি বলে দিয়েছি যে আমি সুদীপ্তকে ক্লাস করতে দেবো না, কথার কথা। এবার তোমরা কি করলে,
সুদীপ্তকে এনে সুদীপ্তর চেহারার ওপর একটা অন্য কারুর ছবি দিয়ে তুমি ওকে ঢেকে দিলে, তারপরে আমি দেখলাম সুদীপ্ত নেই, অন্য কেউ ক্লাস করছে, আমি ক্লাস করালাম। ঠিক এটাও তাই, রাউটার ব্রডকাস্ট ফরওয়ার্ড করে না, কিন্তু এখানে একটা মেথড আছে, একটা প্রোটোকল আছে, যে কি করে না এই ব্রডকাস্ট প্যাকেটটাকে ঢেকে দেয় ইউনিকাস্ট মোডে। তাই রাউটারের ভেতর দিয়ে যখন প্যাকেটটা পাস করছে, রাউটার দেখে যেটা একটা ইউনিকাস্ট মেসেজ, ও ফরওয়ার্ড করে দেয় ব্রডকাস্ট, কিন্তু ব্রডকাস্ট হলে করতে পারতো না। অতএব এখানে ফোর্সফুলির ব্যাপার নয়, এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি করতে পারো চেঞ্জ, সেটা হচ্ছে যদি তোমার সেই প্রোটোকল থাকে যে ব্রডকাস্ট মেসেজটাকে র্যাপ করে দেবে ইউনিকাস্ট মেসেজে, তাহলে ফরওয়ার্ড করে দেবে। ওকে স্যার। স্যার আরেকটা কোশ্চেন, বলো। তো হচ্ছে কলিশন ডোমেন বলে কি কিছু হয়? ব্রডকাস্ট ডোমেন আর কলিশন ডোমেন হয়। ব্রডকাস্ট ডোমেন যেমন একটা ব্রডকাস্ট তুমি রিলিজ করলে সেই ব্রডকাস্টটা কতগুলো ম্যাক্সিমাম নোডের মানে কতটুকুর মধ্যে সার্কুলেট করবে, এটাকে আমি বলি ব্রডকাস্ট ডোমেন। তেমনি একটা পোর্ট থেকে যদি একটা ডেটা রিলিজ হয়, তাহলে সেই যে রিলিজ হলো সেইটা প্রত্যেকটা পোর্টে হতেই পারে যে আর একটা ডেটা রিলিজ হলো, সেখানটা কলিশন জেনারেট করে, যে সেখানে হতেই পারে যে আমিও ডেটা বার করেছি, তুমিও তোমার পোর্ট থেকে ডেটাটা রিলিজ করেছো, তাহলে দুটোর মধ্যে কলিশন হতে পারে। এটাকে বলে কলিশন ডোমেন, যে কোনটুকুর মধ্যে কলিশন হতে পারে, এটাকে বলে কলিশন ডোমেন। স্যার ডোমেন বলে কেন স্যার, ও কি পার্টিকুলার কোনো পোর্ট টোট কিছু আছে? না, পার্টিকুলার কোনো পোর্ট নেই। ডোমেন এই কারণে বলে ইটস অ্যান লজিক্যাল এরিয়া, বাউন্ডারি। ডোমেন মানে হচ্ছে তাই। মানে স্যার পার্টিকুলার কোনো একটা ডোমেন এরিয়ার কথা বলছে যেখানে কলিশনটা ক্রিয়েট হয়েছে? না, উল্টোটা। আমি ধরে নিচ্ছি যে একটা কলিশন ক্রিয়েট হতে পারে, কতটুকুর মধ্যে, কোন কোন পোর্টের মধ্যে হতে পারে, না প্রতিটা পোর্টই হচ্ছে ধরো সুইচের কলিশন ডোমেন প্রন। কারণ কি প্রতিটা পোর্ট থেকে ডেটা বেরোবে, একটার সঙ্গে একটা তো ধাক্কা খেতেই পারে। হ্যাঁ স্যার। 24টা পোর্ট আছে, 24টা পোর্টে 1 নম্বর পোর্ট ডেটা রিলিজ করলো, 3 নম্বর পোর্টও ডেটা রিলিজ করলো, হতেই পারে দুটোর মধ্যে ফ্রিকশন হতে পারে, কলিশন হতেই পারে। তার মানে ওই জন্য বলে যে সুইচের প্রতিটা পোর্টই হচ্ছে কলিশন প্রন, মানে প্রতিটা পোর্টই কলিশন ডোমেনের মধ্যে পড়ছে। মানে তোমার যদি 24টা পোর্টের সুইচ হয়, তাহলে যদি বলে যে কটা এখানে কলিশন, নাম্বার অফ কলিশন ডোমেন কটা, 24টাই, কারণ প্রত্যেকটা পোর্টই হচ্ছে কলিশন প্রন। হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। এবার এইটাই হচ্ছে গল্প, এটা হচ্ছে কলিশন ডোমেন, আর এটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট ডোমেন। এম আই ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার একদম। ওকে, এইবার আমি আসছি কম্পোনেন্টস অফ রাউটার। কম্পোনেন্টস অফ রাউটার, আমি একটা জিনিস বলেছিলাম অনেক আগে, राउटर इज सेम एज ए कंप्यूटर। आई टोल्ड यू, तुम्हारे पास अगर एक कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर के अंदर जो जो डिवाइसेस होना चाहिए, एक राउटर भी उसी के माफिक है। मतलब एक राउटर के तुम कह सकते हो एक कंप्यूटर, सिवाय तीनों को छोड़कर। राउटर का कोई डिस्प्ले नहीं है, इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड माउस नहीं होता है, और ये दोनों को छोड़कर, नॉट तीन, ये दोनों को छोड़कर इसका कोई डिस्प्ले नहीं होता है और इनपुट डिवाइस नहीं होता है। इसीलिए राउटर यूज करता है ये जो सिस्टम है डेस्कटॉप और लैपटॉप को, जो कि तुम्हारा इनपुट आउटपुट डिवाइस के हिसाब से काम करता है। एक कोनो नहीं এই জিনিসটা। Now what are the components? Just see the similarities between a desktop or laptop, normal PC to the router. একটা রাউটারের মধ্যেও সিপিইউ থাকে, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेम एज इन डेस्कटॉप और लैपटॉप। जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, राउटर के अंदर भी एक प्रोसेसर होता है, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मल पीसी के अंदर डायनामिक रैम होता है, राउटर के अंदर भी डायनामिक रैम होता है, डी रैम। वहां पर एक पीसी के अंदर डी रैम का जो काम है, राउटर के अंदर भी डी रैम का वही काम है। दिस द सेकेंड वन। थर्ड वन, एक राउटर के अंदर बायोस होता है, जो कि एक पीसी के अंदर भी होता है। बायोस का काम क्या है? तुम लोग तो हार्डवेयर कर चुके हो, बताओ, তোমরা তো হার্ডওয়্যার করেছো, বায়োসটা জিনিসটা কি একটু বলো তো আমাকে। বলো বায়োসটা কি? Is the BIOS physical device or software device?
মিন্স বায়োস অ্যাকচুয়ালি একটা ফিমার বেসড ডিভাইস, যেটা আপনি স্যার ফিমার বেসড স্যার একটা অ্যাপ্লিকেশন, মানে ফিমার স্যার ওটা অ্যাকচুয়ালি ফিরমার ওটা ফিরমার মানে মানে স্যার যেটা মানে হাই লেভেল সফটওয়্যার, সেটা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল, তোমার প্রোনাউন্সিয়েশনটা ভুল, ফার্মওয়্যার। হ্যাঁ স্যার, সরি স্যার। হুম, ওটা স্যার একদম বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম, যেটা আপনার মাদারবোর্ডের সাথে যতগুলো কানেক্টেড কম্পোনেন্টস আছে। আমার প্রশ্ন সেটা নয়, আমার প্রশ্ন সেটা নয়, আগে প্রশ্নটা শোনো। আমার প্রশ্ন হচ্ছে whether the BIOS is a software or hardware product. সফটওয়্যার প্রোডাক্ট স্যার। গুড, ওকে। বায়োসের মধ্যে কি ইনফরমেশন থাকে, মানে বায়োস কি কি ইনফরমেশনের সঙ্গে রিলেট করে? What are the information that is related by the BIOS? Means if I basically BIOS is an interface, software interface through which we can get which type of informations that I want to know. স্যার আমরা জানতে পারি কোন কোন ডিভাইস কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড আছে, সেই ডিভাইসগুলো কিভাবে কাজ করছে না করছে, তার মানে তার ইনফরমেশন, যেরকম টেম্পারেচার এটসেট্রা। আর এছাড়া জানতে পারি স্যার সেমো সেটিংস, যেরকম ক্লকের, আপনার এখন যে ক্লকটা আছে সে এখন ক্লকটা কিভাবে চলছে। না, একটা জায়গায় ভুল বলছো, কোন ডিভাইস কিভাবে কাজ করবে আমরা বায়োসের থ্রু দিয়ে জানতে পারি না। না স্যার, ড্রাইভার লাগবে আমাদের। না, বায়োস ইজ বেসিক্যালি আ সফটওয়্যার ইন্টারফেস, ইয়েস স্যার। যেটা কি করে না, তোমার এন্টায়ার যত সিস্টেমের হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টস আছে তার ইনফরমেশনকে স্টোর করে, কিভাবে কাজ করে, দ্যাট ইজ নট দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য বায়োস। হাউ দ্য ডিভাইসেস মে ফাংশন, দ্যাট ইজ নট দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য বায়োস। BIOS can store only the information regarding the hardware parts in your computer. That's all. এর বাইরে BIOS কোনো কাজ করে না। আর একটা কাজ করে, another important কাজ, মানে functions that is played by the BIOS. It stores the system startup code. जैसे कि तुम्हारे पास एक बाइक होगा या स्कूटर होगा, उसको लिए की चाहिए जो दबाने से जो जिसके थ्रू से तुम स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हो। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। एक सिस्टम के अंदर जब तुम सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट करने के लिए एक की कोड चाहिए, that is stored by the BIOS. सिस्टम स्टार्टअप कोड एके बोला है। সিস্টেম স্টার্টআপ কোড ইট ইজ এ ভেরি কমপ্লেক্স প্রসেস। এখানে একটা ইনস্ট্রাকশন কাজ করে যাকে বলা হয় জেএমপি, জাম্প ইনস্ট্রাকশন। যে লোকেশনে কিটা থাকে, প্রথমে ইনিশিয়াল লোকেশনে যায়, না অনেক স্টেপস আছে। সো বায়োসের দুটো ফাংশন, টু ফাংশনস আর এক্সিকিউটেড বাই দ্য বায়োস। দ্য ফার্স্ট ফাংশন ইজ টু স্টোর all the hardware related information in your system. That is the primary and most important function of the BIOS. And the second one is it stores the system startup code of your system. So these two functions are executed by the BIOS, nothing else. Am I clear? Yes sir. Okay. Next হচ্ছে iOS. What is iOS? The full form? Inter-Network Operating System. ये क्या होता है? सेम थिंग इन आवर पीसी, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स, विंडोज 7, नोवेल, सन सोलारिस, सब कुछ है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पर भी iOS होता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारा मशीन में क्या है, विंडोज है, लिनक्स है। यहाँ पर ऐसा कोई विंडोज लिनक्स के माफिक कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो होता है उसको कहता है इसका वर्जन iOS 12.1 समथिंग वर्जन। जब 12.2 आया, इसके पता चलता है कि ये अपग्रेडेड वर्जन। जैसे कि विंडोज 7 के बाद विंडोज 8, उसके बाद विंडोज 10, ये नंबर देख के पता चलता है कि ये एडवांस वर्जन में चला जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, वो समझ लो सिस्को वर्जन सच एंड सच 12.1, उसके बाद 12.2। 12.2 मतलब 12.1 से ये बेहतर है, मतलब अपग्रेडेड है। सो iOS you require motherboard. Obviously you require the motherboard. In case of hard PC, you have the motherboard. Same thing is happening here. इसका भी IO पोर्ट होगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट, फिजिकल इनपुट आउटपुट पोर्ट, जैसे कि तुम्हारा सिस्टम में है। डिफरेंस क्या है?
यहाँ पर पोर्ट जो कैटेगरी होता है वो अलग तौर से होता है, और तुम्हारा सिस्टम में साउंड पोर्ट होता है, तुम्हारा पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट सब होता है। जो मॉडर्न राउटर होता है वहाँ पर भी ये यूएसबी पोर्ट सब कुछ होता है। थोड़ा बहुत पोर्ट अलग होता है, কিছু পোর্ট আছে যেগুলো অন্য রকমের। কম্পিউটারের সঙ্গে তো সব মিলবে না, এখানে তো রাউটারে তো সাউন্ড চাই না, সো এখানে সেগুলো থাকে না। নেক্সট ইজ দ্য পাওয়ার সাপ্লাই। In your system you have the SMPS, similarly the router has the SMPS। इसका भी एक चेसिस होता है, इसका भी शीट मेटल स्किन होता है, जैसे कि तुम लोग देख चुके हो ये नेटवर्क लैब में जो राउटर होता है, যেটা রাউটারে আছে। তার মানে এই যে জিনিসগুলো বললাম, অল দ্য কম্পোনেন্টস you have in your desktop but in a different form। तुम्हारे पास सब कुछ जो कंपोनेंट्स यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ तुम्हारा मशीन या लैपटॉप में है, अलग नाम से होता है, थोड़ा बहुत अलग देखने में अलग होता है, दैट इज द डिफरेंस। बट बेसिक पॉइंट इज दिस इज द कॉमन। नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे कि हम प्रेजेंटेशन को चालू कर देते हैं, देखो बेसिकली राउटर को ठीक तरह से चलाने के लिए, जैसे कि तो एसएमपीएस से तुम लोग यूजर हो कोई मतलब नहीं है, एसएमपीएस तो उसके अंदर रहता है। এটা দিয়ে তোমাদের কোনো ঘাটাঘাটির কিছু ব্যাপার নেই, প্রসেসর নিয়ে ঘাটাঘাটির কোনো ব্যাপার নেই। ইউ ডোন্ট need to have any communication with the directly processor or deal with the processor, RAM, everything. But what are the components? You should deal with those components. Those are the parts. One is the RAM, the NVRAM, the flash ROM, another is normal ROM, another is the console, another is the interfaces. Interfaces मतलब जो पोर्ट होता है, पोर्ट वगैरह होता है। कंसोल मतलब ये कंसोल तुमको चाहिए, मैंने अभी बोला कि भाई सब कुछ है इसके पास सिवाय दो चीज को छोड़कर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो इसके इस्तेमाल के लिए तुमको डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी चाहिए तुम यूज करना पड़ेगा, तो उसीलिए कंसोल चाहिए, कंसोल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंसोल उसी को कहते हैं जिसके थ्रू से इनपुट दे रहे हो, जिसके थ्रू से आउटपुट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंसोल एज ए होल। रोम चाहिए, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि रोम के अंदर ही कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, जितना इंफॉर्मेशन होता है हार्डवेयर वो सब रहता है, जिसके जो बायोस के थ्रू से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब द डिफरेंस इन बिटवीन द नॉर्मल पीसी टू रैम इज, वहां पर हार्ड डिस्क रहता है, यहाँ पर हार्ड डिस्क के जगह ये दो रैम में, दो मेमोरी में ये डिवाइड हो चुका है, एनवीरैम और फ्लैश। यहाँ पर हार्ड डिस्क का कोई बात नहीं होता है, हार्ड डिस्क के जगह ये दो अलग मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल रैम एंड फ्लैश मेमोरी। दोनों का काम भी अलग अलग होता है, हम आएंगे बाद में। सो जो बहुत सारे কম্পোনেন্টস होता है, অনেক কিছু হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টস রাউটারের মধ্যে আছে, কিন্তু তার মধ্যে আমরা যেগুলোর সঙ্গে কনসার্ন, the components with which we are concerned about, those are the components is RAM, NVRAM, flash ROM, normal ROM, console port, console, another is the interfaces. These are the basic requirements for communication with the router, with the user or the administrator, you can say. So কি বলেছে একদম উপরে টপের লাইনটা দেখো, a router is a special type of computer, just it has the same basic components as a standard desktop PC. However, routers are designed to perform some very specific functions. Just as computers need the operating system to run the software applications, routers need the iOS to run the configuration files. Difference কি হচ্ছে, রাউটারের যে iOS এ শুধু দুটো জিনিসকে নিয়ে কাজ করে, that is very important, that is the configuration file. যাবতীয় চেঞ্জ, any change what we are doing, all these are in configuration files. कितना configuration file हमने लैब में बताया था, एक स्टार्टअप कॉन्फिग, एक है रनिंग कॉन्फिग, हम आएंगे बाद में। আমি বলেছিলাম যে স্টার্টআপ কনফিগ আর রানিং কনফিগ আছে, আমরা যাবতীয় যখন কাজ করি তখন রানিং কনফিগে বসে
কিন্তু যখন আমার ফাইনালি স্টোর হয় সেটা হয় স্টার্টআপ কনফিগে গিয়ে। ঠিক আছে, সো এখানে কি বলছে, দিস কনফিগারেশন ফাইলস কন্টেইন দ্য ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড দ্য প্যারামিটার্স দ্যাট কন্ট্রোল দ্য ফ্লো অফ ট্রাফিক ইন অ্যান্ড আউট অফ দ্য রাউটার্স। রাউটারের ভেতর ইন অ্যান্ড আউট হওয়ার জন্য কোন ট্রাফিক কোথা দিয়ে যাবে, কোন কোন আইপির সঙ্গে কানেক্টেড হবে, সবকিছু অল দিস আর কানেক্টেড বাই দিস কনফিগারেশন ফাইলস। এবার কি বলছে, দ্য মেনি পার্টস অফ দ্য রাউটার, দিস আর দ্য মেন পার্টস উইথ হুইচ উই ডিল। আমরা যেটার সঙ্গে ডিল করি সেই কম্পোনেন্টগুলো এখানে দিয়েছে। আদার্স মানে অ্যাপার্ট ফ্রম অল দিস কম্पोनेंट्स वी हैव बायोस एवरीथिंग मदरबोर्ड्स एटसेट्रा जो हमने अभी बताया। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके স্যার বলো। তার মানে কি স্যার আমরা একটা ডেস্কটপ পিসি কেও রাউটার হিসেবে স্যার রাউটার বানিয়ে নিতে পারি? পারি। ডেস্কটপ পিসি কে একটা রাউটার বানাতে গেলে তোমার দুটো ল্যান কার্ড দরকার। দুটো ল্যান কার্ড? কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, তুমি সেখানে রাউটারের সবকিছু ফাংশনকে এক্সিকিউট করতে পারবে না, এটাও ঘটনা। একটা পিওর রাউটার যা কাজ করবে এটা তো কখনো সম্ভব না, কিন্তু তুমি টেম্পোরারিলি করতে পারো যে একটা রাউটার একটা পিসি কে আমরা করেওছি, ইনফ্যাক্ট মানে টেস্ট কেস করেও দেখেছি, দুটো রাউটার দুটো ল্যান কার্ড কানেক্ট করে দাও, একটা নেটওয়ার্কের একটা ল্যান কার্ড আর একটা নেটওয়ার্কের জন্য আরেকটা ল্যান কার্ড করে দিলে, করে ওখানে ভেতরে কনফিগারেশন করতে হবে, রেজিস্ট্রি ফাইলে গিয়ে একটু চেঞ্জ করতে হয়, করলে ওটা রাউটার হিসেবে কাজ করে। স্যার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের যারা আইএসপি থাকে স্যার, হুম, তো তারা তো দেখছি আমাদের এটা পার্টটা স্ট্যাটিক আইপি দিয়ে দেয় আমাদের লোকাল নেটওয়ার্কে, আর আমাদের মানে প্রত্যেকটা ইউজারকে কন্ট্রোল করে তার ইউজার আইডি হিসাবে অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোল করা হয়। তো সেই যে সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন গুলো চলে সেটা কি স্যার রাউটারে চলে নাকি ওদের স্পেশালাইজড কোনো সিস্টেম থাকে এক্সট্রা? না না, এগুলো তো ওরা নিজেরাই কনফিগার করে দেয় রাউটারে। আর তুমি যে রাউটারটা বলছো সেটা ওই রাউটার নয়, সেটা হচ্ছে নর্মাল ওয়াইফাই রাউটার। আমি স্যার আইএসপির কথা বললাম। হ্যাঁ, আইএসপির ক্ষেত্রে আমাকে আইপি দিয়ে দিল, আইপি দিয়ে দিল। হ্যাঁ, এবার স্যার মাস গেলে প্রত্যেক মাস গেলে আমার ব্যান্ডউইথ তো স্যার অটোমেটিক্যালি সেট থাকছে আমাদের, হ্যাঁ, এবার মাস গেলে অটোমেটিক্যালি রিনিউ করতে পারছি আমরা অনলাইন থেকে। হ্যাঁ, তো সেইগুলো এটা তো সফটওয়্যার ওরা নিজেদের জন্য ডেভেলপ করেছে, যেটা থ্রু দিয়ে ওরা টোটাল সিস্টেমটাকে সার্ভার আছে সেখান দিয়ে কন্ট্রোল করছে। রাউটারের কাজ হচ্ছে শুধু প্যাকেট ফ্লোটাকে অ্যাডজাস্ট করা, তুমি কাকে ব্লক করছো কাকে অ্যালাউ করছো, বাকি তো সবই করছে সার্ভারের থ্রু দিয়ে। সেটা এটা একটা আলাদা সিস্টেম তো স্যার যেটা রাউটারটাকে কন্ট্রোল করছে। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে তো ওর তো তুমি কনফিগারেশন করে দিচ্ছ, ওর বাইরে তো ওর কোনো ফাংশন নেই। ওকে স্যার। বাকি তো হচ্ছে সফটওয়্যার তুমি যেটা ডেভেলপ করে সার্ভারের মেন সার্ভারের মধ্যে ফেলছো, ও ওখান থেকে অ্যালাউ করছে, ও ওখান থেকে অ্যালাউ করা মানে এখানে রিলেট করেছে সার্ভারের সঙ্গে রাউটারকে বলে দিচ্ছে হ্যাঁ তুমি এই রাউটারকে বসে কনফিগার করে দিলে এই প্যাকেটকে তোমার রিনিউয়ালের ডেট শেষ হয়ে গেছে, রাউটারকে গিয়ে তোমার নেটওয়ার্কটাকে স্টপ করিয়ে দিল, তুমি ওখানে যেই রিনিউ করাছো ওরা দেখতে পেলো, ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাউটারকে গিয়ে ওই প্যাকেট ফ্লোটাকে এনেবল করে দিল, চালু হয়ে গেল। ওকে স্যার। এই জিনিসটা হয় বেসিক্যালি। ওকে, now what are the functions of RAM in router? কি কাজ করে, what are the functions? কি বলছে, it stores the routing table, that is very important. It stores the routing table. একটা রাউটিং টেবিলের মধ্যে কি ইনফরমেশন থাকে, কি নেটওয়ার্ক কাজ করছে, what are the networks attached to it, which interface, whether it is a directly connected network or through some routing protocol. If the through the routing protocol it is connected, then which type of routing protocol? Everything is maintained in a routing table. But remember, as the RAM is a volatile, so if the power is off, then automatically RAM off, automatically routing table off. So that's why যতবার जितना बार तुम सिस्टम को राउटर को चालू करोगे চালাবে স্টার্ট করবে ততবারই কিন্তু নতুন করে রাউটিং টেবিল জেনারেট হবে, उतना बारी ये जो राउटिंग टेबल है नया तौर से जनरेट होगा। That is important here. Okay, next holds the ARP cache. What is ARP? Address Resolution Protocol.
What is its function? It maps the MAC address to IP address. এখানে ARP একটা वाइटल रोल আছে। यहाँ पर जो ARP चलता है इसका एक वाइटल रोल है। समझ लो कोई भी नोड से पैकेट जा रहा है तो उसका मैक एड्रेस होगा, तो ARP का काम होगा कि कौन सा मैक एड्रेस से ये निकल रहा है पैकेट, उसका IP क्या है, इसको बाइंड अप करना, इसको ट्रांसलेट करना, रिजॉल्व करना। तो ये जो ARP कैश है ये भी ये रैम के अंदर रहता है। नहीं तो इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक से कौन सा कनेक्टेड है, कौन सा IP और कौन सा IP से ये पैकेट आ रहा है। अगर मेरे पास ये IP को जाना है, समझ लो कि रिमोट से एक डेटा मेरे पास आया, मेरा IP सॉरी मेरा मैक एड्रेस है X और मेरा IP है 1, जस्ट फॉर एग्जांपल। वो तो भेज दिया 1 में, मैं तो देख लिया कि भाई मेरा राउटिंग टेबल में 1 कौन से इंटरफेस में है, हम देख लिया कि भाई F0/0 में मेरा 1 नेटवर्क कनेक्टेड है, हम वहां पर भेज दिया। उसके बाद कैसे एक उसके बाद जाएगा, क्योंकि 1 तो हम 1 के पास तो हम भेज दिया, लेकिन वहां पर तो बहुत सारे मशीन है। तब जाके ARP क्या करेगा, उस 1 के साथ मैक का रिजॉल्व करेगा, रिजॉल्व करके बता देगा कि भाई ये पैकेट ये 1 के लिए 1 है, X के लिए ये X को भेज दो। तो इसीलिए एक ARP कैश क्या, ये टेम्पोररी होता है। मैंने बोला कि रैम वोलेटाइल, सो इसके अंदर जब जो भी होगा सभी कैश मतलब वोलेटाइल होगा। तो ARP कैश के अंदर ये सब रहेगा, तो ARP कैश भी वहां पर होगा। नेक्स्ट holds the fast switching. Remember, FAST fast, not FIRST. Fast switching cache. Fast switching मतलब होता है क्या? डिफरेंट साइट का स्विचिंग टेक्नोलॉजी राउटर के अंदर इस्तेमाल होता है। डिफरेंट कैटेगरी राउटिंग এর মধ্যে সুইচিং হয় বাই ডিফল্ট in each Cisco router the fast switching is enabled. ফাস্ট সুইচিং মানে হচ্ছে কি, আমি একদম প্যাকেটটাকে রিসিভ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে কোথায় পাঠাতে হবে तुरंत ওখানে পাঠিয়ে দিলাম, पैकेटটা चले गया। मैंने जब भी पैकेट को रिसीव किया, वेरी फर्स्ट just observing the packet and routing table there and there, I send it to the exit interface, proper exit interface, चला गया। इसको कहते हैं फास्ट स्विचिंग। समझ लो एक ही साथ एक ही टाइम फ्रेम में एक इंटरफेस से डेटा आ रहा है, इस इंटरफेस में भी डेटा आ रहा है, इसका जाना होगा यहाँ पर, इसका जाना होगा इधर, तो उतना फास्ट कैसे होगा, ये फास्ट स्विचिंग कैश के हिसाब से होगा। बहुत सारे इंटरफेस तो कनेक्टेड है, बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ट्रैफिक चला जा रहा है, तो इतना फास्ट कैसे जा रहा है, ये फास्ट स्विचिंग कैश के लिए। ये तुरंत ये क्या करता है, कौन सा रूट से कौन सा, ये इस रूट से यहाँ पर, इस रूट से यहाँ पर, एक साथ बहुत सारे पैकेट आया तो वो हैंडल कर सकता है। तो इसीलिए कैश चाहिए, जहां पर ये फास्ट स्विचिंग को लिए डेटा को बफरिंग होना चाहिए, बफरिंग करेगा, दैट इज द फास्ट स्विचिंग कैश। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Okay. Next is the performs the packet buffering in shared RAM. रैम समझ लो हम लोगों के पास जैसे रैम होता है वहां पर भी जीबी का रैम होता है, 2 GB 4 GB का रैम हो सकता है। तो पर्टिकुलर जो रैम होगा ना, उस रैम के एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा। यहाँ पर ARP कैश चला गया, राउटिंग टेबल चला गया, यहाँ पर फास्ट स्विचिंग कैश चला गया, इसी को छोड़कर, ये सब को छोड़कर एक स्पेशल ब्लैंक जगह होगा, वहां पर ये बफरिंग, पैकेट बफरिंग होगा। पैकेट को रख रहा है, जब ये क्लियर हो जाएगा तो पैकेट बफर से निकालकर दूसरा जगह भेज देगा। जैसे कि हम लोग होता है ना, ये ट्रैफिक सिग्नल में कि जब इस रूट में चल रहा है ट्रांसपोर्ट चालू है, तो अब तुम रुक जाओ, वहां पर टेम्पोररी बफरिंग हो रहा है, गाड़ी सब रोक के खड़ा है, उसके बाद सिग्नल ऑन हुआ, ये रूट बंद हो गया, ये रूट चालू हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। परफॉर्म्स द पैकेट बफरिंग मतलब राउटर के अंदर देखो बहुत सारे चीज है, राउटिंग टेबल होता है, ARP कैश होता है, फास्ट स्विचिंग कैश होता है, बहुत सारे चीज। ये सब को छोड़कर एक स्पेशल ब्लैंक जगह होगा, वहां पर डेटा को सफल करेगा। वो सफल करने के बाद अगर कोई भी कंजेशन अराइज होगा
एक्चुअली कंजेशन अवॉइड करने के लिए ये बफरिंग होता है कि चलो भाई तुम यहाँ पर आओ, ठीक है, वो तो चला गया, अब तुम जाओ, तो उसको तो थोड़ा बहुत किसी जगह चाहिए जहां पर ये ट्रैफिक को रोकना है। दैट इज द पैकेट बफरिंग। इसको कहते हैं, टेक्निकल इसका नाम है शेयर्ड रैम। रैम का एक लोकेशन को ये शेयर कर देता है कि भाई चलो यहाँ पर पैकेट बफरिंग करो, करके चला जाओ फॉर द फास्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होच्छे मेंटेन्स द पैकेट होल्ड क्यूज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पैकेट होल्ड क्यूज? समझ लो मेरा एक्स नेटवर्क कनेक्टेड है, सॉरी, वन नेटवर्क कनेक्टेड है एक्स इंटरफेस में और टू नेटवर्क कनेक्टेड है वाई इंटरफेस में, राउटर में। तो मेरा डेटा एक्स नेटवर्क से वाई नेटवर्क को जा रहा है, तो एक तो डेटा नहीं जाएगा, डेटा तो पैकेट के हिसाब से जाएगा, बहुत सारे पैकेट होगा, तो 1 2 3 करके पैकेट जा रहा है। हो सकता है ड्यू टू सम डिले पैकेट थोड़ा बहुत स्लो जा रहा है, इसीलिए वहां पर एक क्यू मेंटेन होगा। क्यू मतलब ये किसका, एक्स से वाई जाने के लिए जो क्यू, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई को छोड़कर भी बहुत सारे पोर्ट है जिसके अंदर डेटा कम्युनिकेशन चल रहा है, हर एक के लिए वो एक क्यू मेंटेन करता है जो प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर सोर्स टू प्रॉपर डेस्टिनेशन, प्रॉपर डेटा को प्रॉपरली भेजना है, एक क्यू मेंटेन करके। दैट इज कॉल्ड द पैकेट होल्ड क्यूज। जब स्लो जा रहा है, 2 पैकेट चला गया, 3 पैकेट चला गया, लेकिन स्लोली, तब जाके बोला कि भाई ये क्यू मेंटेन करो, जिसके थ्रू से एक से वाई नेटवर्क में डेटा जाना है, तो ये क्यू मेंटेन करके यहाँ पर तुम खड़ा रहो, इसके बाद एक, तो उसके बाद तुम जाओ, उसके बाद तुम जाओ, ऐसे करके। सो दैट इज कॉल्ड द पैकेट होल्ड क्यूज। ওটাকে বলছে প্যাকেট হোল্ড কিউ। মানে আমি যখন একটা ডেটা পাঠাবো, এবার আমি তো 101টা ডেটা পাঠাচ্ছি না, আমার নেটওয়ার্ক তোমার নেটওয়ার্কের সঙ্গে যখন কমিউনিকেট করছে, প্যারালালি তো অন্য পোর্টের সঙ্গেও করছে, তাই তো সেখানে ডেটা মিক্স হয়ে যেতে পারে, হয় না? তো হবে না, তার কারণ প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক তার একটা কিউ মেনটেন করে, সেই কিউটা এই র্যামেতে মেনটেন করা হয়। দ্যাট ইজ ওয়াই এটাকে বলা হয় প্যাকেট হোল্ড কিউজ। এম আই ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, লাস্ট পয়েন্ট কি, নেক্সট পয়েন্ট কি বলছে? It provides the temporary memory for configuration file of the router while the router is powered on. যেটা আমি আগের দিন দেখাচ্ছিলাম তোমাদের করে, যে রানিং কনফিগারেশনের মধ্যে একটা ফাইল আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রানিং কনফিগারেশন ফাইল। It stores all the temporary configuration changes in it. If the if you you switch off the power of the router, then automatically RAM vanished. I mean, RAM not vanished, actually the contents of the RAM vanished. So automatically what you have in the running configuration file, all gone, all those gone. Because same as RAM, running configuration file is a temporary file. What we are making changes, everything under running configuration. But if we want to make it permanent, then I have to copy space run space start. मैंने लास्ट लैब में दिखाया था, कॉपी स्पेस रन स्पेस स्टार्ट, मतलब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो भी आया उसको कॉपी करके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में भेज दो। ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहता है? रहता है एनवी रैम में। जब तुम ये उसके अंदर कॉपी करके भेज दिया, मतलब तुम्हारा जो कॉन्फ़िगरेशन अब चेंज हुआ वो परमानेंटली उसके अंदर चला गया। समझ लो तुम डिफरेंट जो इंटरफेसेस है वहां पर आईपी एड्रेस डाल दिया, उसके बाद स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम राउटर को चलाओगे, ऑन करोगे, तो तुमको वो कॉन्फ़िगरेशन सब मिल जाएगा। अदरवाइज इफ यू व्हाट वी आर डूइंग, एवरीथिंग इज अंडर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, you didn't save anything to startup configuration, then after switch off your router, again when you power on, then you won't get nothing, you won't get nothing, কিছু পাবে না তোমরা, তার কারণ তুমি সেভই করোনি। যেমন আমরা सेम थिंग इज हैपनिंग, समझ लो कि हम लोग के जो कंप्यूटर में होता है, सब कुछ कर रहा है, सेव बटन दबाने से क्या होता है, वो परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, नहीं दबाने से क्या होता है, हम लोग जो भी किया, अगर पावर कट बा जो भी हुआ वो चला जाएगा। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। लास्ट पॉइंट, इट इज ऑब्वियस, लूजेस कंटेंट व्हेन द राउटर इज पावर्ड डाउन और स्टार्टेड। अगर तुम्हारा राउटर को तुम बंद कर दोगे अचानक,
बंद कर दिया, या तो जो भी कुछ रैम के अंदर होगा वो सब चला जाएगा, मतलब फिर से तुमको बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कॉपी स्पेस रन स्पेस स्टार्ट करके रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डाल देते हैं। इसीलिए किसी भी तरह अगर पावर फेलियर हो जाएगा किसी भी हिसाब से, तो वो पुराना डेटा हम लोगों को सब मिल जाएगा। इसीलिए सो दिस इज द रोल प्लेड बाय द रैम। इज इट क्लियर और नॉट? सर एक्सटर्नल स्टोरेज में कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल तुम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे कि तुम कनेक्ट कॉपी करके ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब जब प्रॉब्लम इज देयर, जब राउटर को तुम चालू करोगे तो फिर से वो उसको तुमको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डालना होगा। नॉर्मल हिसाब से क्या होता है, तुम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में अंदर डाल दिया तो हो गया, तो परमानेंट। लेकिन अगर तुम कोई एक्सटर्नल स्टोरेज के थ्रू से उसको कम्युनिकेट करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत उसका कौन सा आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को तुमको बताना पड़ेगा, उस फाइल का तुम्हारा नाम देना पड़ेगा, वो सब कॉपी करके इसके अंदर आना होगा, तब जाके उस कॉपी फाइल होगा। हम दिखाएंगे, कल तो तुम्हारा पॉसिबली लैब है, वहां पर हम दिखाएंगे कि टीएफटीपी सर्वर में कैसे हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पर जो भी काम करता है वो कैसे टीएफटीपी सर्वर के अंदर डालते हैं, और रेस्टोर भी कैसे टीएफटीपी सर्वर से होता है, हम कल दिखाएंगे। टीएफटीपी सर्वर एक अलग करके सर्वर होता है पेशी, उसके अंदर हम लोग आईओएस का बैकअप चाहिए वहां पर रखने के लिए, तो कैसे आईओएस का बैकअप उसके अंदर रहेगा, और जब रेस्टोर होगा तो कैसे होगा, कल हम दिखाएंगे। ओके, सो दिस इज द रैम। हाँ बोलो पैकेट बोलो। बफरिंग, हाँ पैकेट बफरिंग बता दीजिए। पैकेट बफरिंग, पैकेट बफरिंग, यस सर। अच्छा। बफर मतलब एक ब्लैंक एरिया होता है जो तुम्हारे पास होता है ना, एक ब्लैंक एरिया, ब्लैंक जगह होता है जहाँ पर कुछ नहीं रहता है। तो पैकेट बफरिंग के मतलब होता है, समझ लो एक राउटर का तो बहुत सारे इंटरफेस हो सकता है, बहुत सारे नेटवर्क भी कनेक्टेड हो सकता है, बहुत सारे पैकेट वहाँ पर होता है, वहाँ पर आ जा सकते हैं। तो क्या हुआ, वो बफरिंग के लिए एक जगह चाहिए, जैसे कि वर्चुअल मेमोरी हम लोग बोलते हैं कि डेटा को तो सफल करना है, ऐसा तो नहीं कि ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक में ये यहाँ पर चला जाएगा, इस ट्रैक में यहाँ पर चला जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तो खुला हुआ मेमोरी है, तो एक डेटा यहाँ पर आएगा, एक डेटा यहाँ पर, तो ये सब कुछ तो गुल मिल जाएगा। तो इसीलिए बोला कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया होगा ये बफरिंग के लिए, तुम्हारा जो डेटा है वहाँ पर ले जाओ, तुम्हारा जो डेटा है वहाँ पर ले जाओ, ये क्यू क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा डेटा यहाँ पर चलाएगा, तो यहाँ पर चलाएगा। मतलब जैसे कि गैरेज होता है ना, बास का गैरेज होता है, डिपो, बस डिपो हम लोग कहते हैं कि जहाँ पर टेम्पोररी खड़ा रहो, उसके बाद एक के बाद एक चलो। तो यहाँ पर भी पैकेट बफरिंग यहाँ पर होता है। ज़्यादा पैकेट होने से ये शेयर्ड रैम में रहता है कि भाई ये डेटा वहाँ पर भेज दो, वहाँ पर रहने के बाद ये ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इसको आने दो, चलाएगा। दैट इज द पैकेट बफरिंग। जब कोई भी कॉन्जेशन, माने ये एक्चुअली पैकेट बफरिंग का मेन काम है जस्ट टू अवॉइड द congestion, nothing else। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, so any question? Any questions? सर जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे जो आईपी मिलता है वो पब्लिक आईपी होता है या प्राइवेट होता है? तो जो आईपी परचेस करता है, तब वो जो आईपी परचेस करता है किसी के पास से तो लेता है बेसिकली। जैसे कि हम लोगों के पास ये जो कलकत्ता में जो बिग आईएसपी है, इन लोगों ने जो आईपी स्टैटिक आईपी खरीद किया, वो किससे किया, यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, टीसीएल से इन लोगों को मिलता है स्टैटिक आईपी। जैसे कि अलायंस, विशनेट, ये सब आईएसपी है, ये लोग स्ट्रेट जाके एक स्टैटिक आईपी को खरीद कर लेता है टीसीएल से, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। वो एक लीज लाइन एक स्टैटिक आईपी डाल देता है, भाई ये लो तुम्हारा स्टैटिक आईपी, जब जाके वो सबनेटिंग करके तुम्हारा नेटवर्क चालू कर दो।
वो अलग से एक आईपी होता है जो उन लोगों को मिलता है। उसके हिसाब से ये लोग डिजाइन करते हैं कि कौन सा आईपी, कितना बड़ा सबनेट होगा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सबनेट्स यू रिक्वायर, सब कुछ ये पर बनता है। एनी क्वेश्चंस? सर मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसने एक आईपी खरीदा, तो उसमें पब्लिक आईपी कौन सा होगा, प्राइवेट कौन सा होगा? जो आईपी वहां से मिलता है वो अलग आईपी होता है। उस आईपी को लेकर वो लोग, ये आईएसपी का काम है, और वो लोग बोल देते हैं, ये टीसीएल होता है, टीसीएल बोल देते हैं कि भाई ये आईपी दे रहा है, ये तुम्हारा स्टैटिक फिक्स्ड आईपी हो गया, अब तुम जाके इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईपी सबनेटिंग के लिए आईपी चाहिए तुमको कितना, वो बनाओ, तब जाके उसका वो आईएसपी जो होता है उसको मिलता है, वो बनाता है। ये टीसीएल का काम नहीं है। टीसीएल तुमको बोल दिया भाई ये आईपी ले लो, ये तुम्हारा लिए है, इसके ऊपर हिसाब से तुम्हारा नेटवर्क डिजाइन करो, बस यहाँ पर टीसीएल का जिम्मेदारी खत्म। अब आईएसपी को डिसाइड करना है कौन सा आईपी हमको प्राइवेट आईपी बनाना पड़ेगा, कौन सा नेटवर्क में चलेगा, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पब्लिक क्या होगा, दैट इज द नेटिंग। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये बनाता है कि कौन सा टाइप का नेटिंग 3 टाइप का होता है, तो कौन सा टाइप का नेटिंग हम इस्तेमाल करेंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेटिंग एड्रेस, पब्लिक एड्रेस क्या होगा, ये सब कुछ रेडी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर इसको बनाता है। तुम लोग देखोगे जब नेटिंग तुम लोग करोगे तब जाके तुम लोगों को भी ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर स्टैटिक होगा तो स्टैटिक कैसे होगा, एक ही स्टैटिक आईपी होगा, जितना भी तुम्हारा प्राइवेट होगा, जब भी कोई कम्युनिकेशन होगा तो एक ही आईपी पब्लिक आईपी के थ्रू से होगा। सो दैट इज द स्टैटिक। डायनामिक मतलब इट प्रोवाइड्स ए रेंज, तो उसके थ्रू से होगा। ये तुम्हारे हाथ में है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है आईएसपी का, उसका हाथ में है, ये टीसीएल का जिम्मेदारी नहीं है। टीसीएल तो सिर्फ तुमको एक स्टैटिक आईपी बना के छोड़ दिया कि भाई ये स्टैटिक आईपी तुमको दे दिया, अब तुम जाके जो भी करो इतना दिन के लिए, 1 साल या 2 साल के लिए हम तुमको दे दिया, उसके बाद तुमको रिन्यू करना है। रिन्यू करने से बाद यह आईपी भी मिल सकता है, ये आईपी नहीं भी मिल सकता है। ये जो पब्लिक तुम्हारा जो कहना है कि सर प्राइवेट पब्लिक कौन सा बनाएंगे, ये तो तुम्हारा आईएसपी का एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, जो कौन सा ये मेरा आईपी मिला है, इसके थ्रू से कौन सा टाइप का पब्लिक आईपी हमको चाहिए, उसी के हिसाब से नेट कॉन्फ़िगर करना, ये काम आईएसपी का है। दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीज लाइन प्रोवाइडर, मतलब जो मेन होता है उसका काम नहीं है, ये आईएसपी का काम है। इज इट क्लियर? ओके सर। ওকে, আচ্ছা আমি 1 মিনিট, আমি একটু যাওয়ার আগে আমি একটুখানি জল খেয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে? অনেকক্ষণ কথা বলেছি। Okay, next, non-volatile RAM. What is the purpose of NVRAM? Basically, 2 functions are there. First, अभी जो मैंने बताया, it provides the storage for the startup configuration file. It stores the startup configuration file. जो भी permanent changes है
जो भी फिक्स्ड करके लिखा हुआ रहता है वो एनवीरैम के अंदर रहता है। सेकेंड, retains content when router is powered down or restarted। सेकेंड काम है कोई किसी भी तरह तुम राउटर को पावर ऑफ कर दिया, नो प्रॉब्लम। राउटर को रिस्टार्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम। क्या होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो भी फाइल रहेगा वो सेफ रहेगा। मतलब इसीलिए इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल रैम। इसके अंदर पावर जाने के बाद या रिस्टार्ट करने के बाद भी जो कंटेंट्स इसके अंदर रहना चाहिए वो सब कुछ रहेगा, तो इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल कहता है। दैट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द NVRAM। ओके, नाउ द फ्लैश RAM। व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्लैश मेमोरी? देखो, एक्चुअली फ्लैश मेमोरी शो फ्लैश, मैंने उस दिन एक कमांड दिखाया था लैब में, शो फ्लैश मारने से क्या होगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। एक्चुअली फ्लैश मेमोरी के सिस्टम का जो इमेज iOS वो रहता है। सेकेंड, it allows the software to be updated without removing and replacing the chips in the processor। कोई भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर चलाएगा, समझ लो ये iOS, जैसे मैंने उस टाइम बताया था कि समझ लो तुम्हारे पास 12.1 है, तुमको 12.2 मिला, तो फ्लैश के अंदर जाके इसको अपडेट कर दो, सो ऑटोमेटिकली iOS वर्जन अपडेट हो जाएगा। दैट इज द सेकेंड पॉइंट, इट अलाउज द अपडेशन। थर्ड पॉइंट इज सिंपल, सेम एज NVRAM। इसके अंदर जो भी चाहे सभी कुछ रहेगा, पावर जाने के बाद भी या रिस्टार्ट करने के बाद भी। Another thing is important here, can store multiple versions of iOS software। मतलब जैसे कि तुम्हारा एक सिस्टम के अंदर विंडोज और लिनक्स डुअल बूटिंग रहता है, ट्रिपल बूटिंग भी रह सकता है। तुम अगर चाहो एक मशीन के अंदर विंडोज XP, विंडोज 7, लिनक्स तीनों को रख सकते हो। उसी की तरह ये फ्लैश रॉम के अंदर तीनों iOS 1, 2, 3 ये वर्जन तुम रख सकते हो। मतलब तुम्हारा हाथ में ये चॉइस होगा कौन सा वर्जन से मेरा सिस्टम बूट होना चाहिए। जैसे कि विंडोज XP, विंडोज 7, लिनक्स है, तुम जिसमें जाके बटन दबा दिया, एंटर प्रेस कर दिया, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होता है, তোমরা যেমন এখানে করছো সেম জিনিস কিন্তু এখানেও করতে পারো। যদি একের বেশি ভার্সন থাকে, তুমি যদি মনে করো যে আমি কোন ভার্সনটা দিয়ে iOS কে বুট করাবো, ইউ হ্যাভ দিস অপরচুনিটি। কি বলছে, ইট ইজ এ টাইপ অফ ইলেকট্রনিক্যালি ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রম। বেসিক্যালি ফ্ল্যাশ রমটা হচ্ছে EEPROM এর আপগ্রেডেশন। सो जितना बार चाहे तुम इसके अंदर जो भी है चेंज कर सकते हो, इरेज करके चेंज कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इरेजेबल। तुम इरेज कर सकते हो। प्रोग्रामेबल मतलब फिर से इसके अंदर इसको अपडेट कर सकते हो, बस चेंज करके जो मिलता है। 12.2 है, तुम उसको हटा दिया, 12.3 इंस्टॉल कर दिया, तो ये हटा देने के लिए इरेजेबल, और ये फिर से इंस्टॉल करने के लिए प्रोग्रामेबल। मतलब जितना बार चाहे तुम चेंज कर सकते हो, जितना बार चाहे यहाँ इसके अंदर जो भी चाहे इसको हटा सकते हो। दैट इज द फ्लैश रॉम का फंक्शन है। एम आई क्लियर और नॉट? Yes, sir. Okay. Next, what is the purpose of using simple ROM, read-only memory? Maintains the instruction for post. Obviously, same as hardware parts in our PC. पोस्ट चेकिंग यहाँ पर भी होता है राउटर के अंदर। देखोगे 2 LED होता है राउटर के वहां पर। एक LED उसको कहते हैं एम्बर, मतलब ऑरेंज के माफिक होता है, और एक ग्रीन। जब पोस्ट चल रहा है, मतलब राउटर को काम करने के लिए रेडी कर रहा है, तब ये एम्बर साइन होगा। जब राउटर रेडी हो गया, वो ग्रीन बटन ऑन हो गया।
ग्रीन मतलब राउटर इज ओके। जब ये एम्बर एलईडी जलेगा तो उससे पता चलता है कि राउटर का पोस्ट चेकिंग चल रहा है, राउटर अभी रेडी नहीं हुआ काम करने के लिए, जस्ट इट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर यूजिंग, यूज करने के लिए ये प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन जब भी ग्रीन बटन ऑन हो जाएगा मतलब इट इज रेडी टू एक्सेप्ट एनी कमांड्स, एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू, मीन्स द यूजर। মানে এটা তখন দেখবে ওই সাইনটাকে অ্যাম্বার সাইন, আমরা কমলা লেবু বা ওই জাতীয় একটা সাইন থাকে, ওই সাইনটা যতক্ষণ থাকে তার মানে রাউটার নিজেকে রেডি করছে যে আমি এখন কাজ করার জন্য তৈরি হচ্ছি, মানে জামা কাপড় পরছি, তারপর জামা কাপড় পরে রেডি হয়ে গেলাম, এবার আমি বেরোবো, তখন গ্রিন বাটনটা অন হয়ে গেল। দ্যাট ইজ দ্য সেম কেস। নেক্সট কি বলছে, ইট স্টোরস দ্য বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম অ্যান্ড বেসিক আইওএস, মানে ড্রাইভার রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন আইওএস কে হেল্প করে। আর বুটস্ট্র্যাপ লোডার যেটা অপারেটিং সিস্টেমকে টেনে নিয়ে আসে, র্যামে এনভিরাম থেকে তোমার ফ্ল্যাশ থেকে র্যামে নিয়ে আসবে, সেই বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা থাকে রমে, যেটা আমি একটু আগে বললাম সিস্টেম স্টার্টআপ কোড, দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম। ইন নর্মাল ডেস্কটপ or PC it is called bootstrap startup code or boot code that is stored in the ROM, which helps to bring the operating system from flash ROM to the dynamic RAM। काम करने के लिए जिसका काम है कि भाई चलो तुम कहां पर हो, तुम फ्लैश ROM में हो, आप तुम चलो फ्लैश ROM के बाहर से, फ्लैश ROM के जगह से तुम चले आओ डायनामिक रैम में, तो किसी ना किसी को तो वहां से यहाँ पर लाना होगा, तो कौन लाएगा, वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहाँ रहता है, वो रॉम के अंदर रहता है। जब भी तुम तुम्हारा राउटर को ऑन करोगे ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम उसको यहाँ पर ले आएगा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज इट रिक्वायर्स replacing the pluggable chips on the motherboard for software upgrades। मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे चिप्स होता है, उसका भी वर्जन होता है। अगर तुमको चाहे कि नहीं ये जो चिप है इसका अपडेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस नया चिप को हटा के नया चिप बना, पुराना चिप को हटा के नया चिप बैठा दो, ऑटोमेटिकली रॉम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लैश होके चला जाएगा और नया जो इंफॉर्मेशन तुम बिठा दिया वो नया इंफॉर्मेशन उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। ধরো কিছু প্লাগেবল চিপস থাকে হুইচ ইউ ক্যান ইজিলি ডিট্যাচ, যেটাকে তুমি কানেক্ট করতে পারো, তুমি সরিয়ে দিতে পারো। তো দেখা গেল তোমার যে চিপটা আছে পার্টিকুলার ধরো তার ভার্সন সে X.1, এবার তুমি দেখলে ওই প্লাগেবল চিপ বলছি আমি, কখনো বলছি না এমবেডেড চিপ। I am not asking about the embedded chip. I am using the term pluggable chip, which you can easily connect or disconnect. But embedded chip that is already integrated with the motherboard. I am not talking about that. So pluggable chip er moddhe you have the, suppose a pluggable chip is there, that version is X.1, but market mein tumko mil gaya X.2, then what will you do? Simple, वो जाके X1 को अनप्लग करो और X.2 को प्लग करो, करके फिट कर दो, ऑटोमेटिकली जो चेंजेस होगा रॉम इसके अंदर उसके सब इंफॉर्मेशन स्टोर कर देगा। नो प्रॉब्लम विल बी देयर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एम आई क्लियर और नॉट? আমি কি বোঝাতে পারছি না আমাকে একটু বলো। तो बूटस्ट्रैप वाला थोड़ा एक बूटस्ट्रैप इज नथिंग। ये बूटस्ट्रैप, ये जो टर्म कहां से आया? तुम लोग हंसोगे। ये बूट शू होता है ना, शू जो होता है बूट हम बोलते हैं, तो वो स्ट्रैप वहां पर होता है ना, तो स्ट्रैप को क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैप। तो तुम पूछ सकते हो सर उसके साथ इसका क्या लेना देना है? हाँ है, उस कंसेप्ट से ही इस नाम को डाल दिया सबने, जो बूटस्ट्रैप लोडर। मतलब तुम्हारे पास एक शू आया, वो बूट है, उसके ऊपर एक बंधा हुआ है, तो तुमको हम बोला कि भाई ये उठाकर दिखाओ हमको,
तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन है पूरा शू को हाथ में लेकर मेरे पास खड़ा होना, लेकिन दैट इज नॉट एक्सेप्टेड और दैट इज नॉट अलाउएबल, बिकॉज बहुत सारे कीचड़ हो सकता है उस शू के अंदर, सब कुछ होता है। तुमने बोला सर आपको तो बूट देख कैसे बूट शू देखना है, तो ठीक है काम कीजिए, वो जो स्ट्रैप होता है उस स्ट्रैप को पकड़कर तुम बोला कि देखिए सर ये है, मतलब एक स्ट्रैप को तुम कॉल किया और पूरा बूट तुम्हारे पास चलाया। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट दैट दिस नेम केम इनटू द मार्केट, बूट स्ट्रैप लोडर। मतलब एक स्ट्रैप को कॉल किया, वो पूरा बूट स्ट्रैप का पूरा वेस्ट को लाकर खड़ा कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप लोडर। समझ में आया? I am not giving you the example. Actually, this is the fact. Actually, this is the fact. इसीलिए इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। मतलब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है? एक इंजन जिसका काम है पूरा ट्रेन को कलकत्ता से दिल्ली तक ले जाना। पूरा ट्रेन को क्या कहता है? समझ लो राजधानी एक्सप्रेस उसका नाम है। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस तो अकेला वो बच्चा नहीं चलेगा, तो खींचकर दिल्ली तक ले जाना है, ये इंजन जाएगा। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जिसका काम है पूरा राजधानी एक्सप्रेस को कलकत्ता से दिल्ली ले जाना। सो दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को कलकत्ता से मतलब सेकेंडरी रैम में ले गया, मतलब दिल्ली में ले गया। कौन ले गया? ये पूरा क्या है? राजधानी एक्सप्रेस। कौन ले गया? वो पर्टिकुलर इंजन ले गया, मतलब वो बूटस्ट्रैप है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। ओके, নেক্সট তো আর 3 মিনিট রয়েছে, আমি জাস্ট একটু কনক্লুড করব। নাও বলো যে কার কি প্রশ্ন রয়েছে, এবারে কার কি সমস্যা আছে? স্যার বলো। বলছি এনভিডিএম এ যে কনফিগারেশন ডাটাগুলো থাকে, আবার রাউটারে কথাটা ডাটা নয় ডেটা। এস কনফিগারেশন ডেটাগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো কি রাউটারটা যখন বুট হয় তখন কি এনভিডিএম থেকে যে মেইন র‍্যাম ওখানে আসে নাকি ডাইরেক্ট রাউটার ওখান থেকে রিড করে এনভিডিএম থেকেই? না, এনভিডিএম থেকে র‍্যামে আসবে, যেটা এই বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা যেটা রমে থাকে সে টেনে নিয়ে আসে। ওকে স্যার। মানে কোনোভাবেই ডাইরেক্টলি এরকম ভাবে আসবে না, বুঝেছো? এটা ওকেই নিয়ে আসতে হবে। ওকে স্যার। আজকে কি সবাই প্রেজেন্ট আছো নাকি? अजीत नहीं अजय। হ্যাঁ, অজিত নেই। नहीं আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রবলেম আছে বলো? হ্যাঁ বলো। सर NVRAM ही क्यों यूज किया गया और कोई भी स्टोरेज डिवाइस से यूज कर सकते हैं? एक्चुअली यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खूब बहुत स्पेस नहीं चाहिए, ये कॉन्सेप्ट उसी के लिए आया। यहाँ पर हार्ड डिस्क या ये तो एक सिस्टम, तो ये तो छोटा करके है, एकदम फ्लैट बेड होता है छोटा करके, तो वहां पर अगर हार्ड डिस्क उतना चाहिए जगह तो नहीं चाहिए। यहाँ पर तो कोई डाटा वगैरह तो सेव नहीं होगा, जस्ट सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए एनवीरैम इस्तेमाल हुआ है। मतलब हमारा जो कहने का छोटा होगा। हाँ, तो छोटा ही तो बहुत सारे माने मतलब ह्यूज साइज तो नहीं चाहिए यहाँ पर, ये तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करेगा। कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने के लिए जितना साइज चाहिए बस उतना है, और ये डिपेंड होता है कि तुम्हारा ये राउटर कितना फास्ट होगा, उसके अंदर कितना एडवांस्ड होगा। तो जितना एडवांस्ड होगा एनवीरैम का कैपेसिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। समझ लो तुम नॉर्मल एक राउटर लिया तो उसके अंदर एनवीरैम था से 2 MB जस्ट फॉर एग्जांपल,
लेकिन उसके बाद जो वो एडवांस लेवल का जो राउटर लिया उसका काम और भी है और वो एडवांस्ड है, तो इसी यहाँ पर तो जितना तुम्हारा काम है इतना, तो तुम अगर चाहो कि तुम इतना सारा स्पेस, तो ऑटोमेटिकली तो तुम्हारा कॉस्टिंग भी बहुत हो जाएगा ना। समझ लो वहां पर कोई हार्ड डिस्क तुम बिठा दिया, तो ठीक है भाई चलो हार्ड डिस्क में बिठा दिया, तो हार्ड डिस्क बिठा के क्या करोगे? 30 GB 40 GB हार्ड डिस्क का क्या काम है वहां पर? वहां तो कुछ काम नहीं है। तुम्हारा नॉर्मल डेस्कटॉप मशीन या लैपटॉप मशीन में क्या होता है, बहुत सारे डेटा वगैरह तुम्हारा रख सकते हो, मूवी रख सकते हो। तो राउटर का तो काम ये नहीं है कि वहां पर मूवी स्टोर करके रखना या गाना सुनने के लिए गाना स्टोर करना। इट सिंपली स्टोर्स द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स। इसीलिए मतलब उसका बैकअप कितना होगा? बैकअप ज्यादा से ज्यादा 2 MB 3 MB 4 MB होगा, तो उसके लिए बहुत सारा स्पेस इस्तेमाल करना तो फायदेमंद नहीं है ना। हाँ, या अगर तुम्हारा डेस्कटॉप पीसी का बात बोलो तो ठीक है भाई, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंस्टॉल कर सकते हैं। नो, दैट इज नॉट। इट सिंपली स्टोर्स द कॉन्फ़िगरेशन, राउटर कॉन्फ़िगरेशन, और ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं। राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उतना के लिए कितना ज्यादा चाहिए जगह? 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 10 MB चाहिए। दैट इज द मेन रीजन। तुम लगा सकते हो, लेकिन तुमको तो समझ लो कि तुमको एक हार्ड डिस्क, तुम बोला कि नहीं हम NVRAM की जगह हार्ड डिस्क कनेक्ट करेंगे। यस, यू कैन डू दैट, बट इसके लिए उसके अंदर जो राउटर का जो मदरबोर्ड होगा उसके अंदर वो फैसिलिटी होना चाहिए। सेकेंडली, डेटा फ्लोएबिलिटी सपोर्ट होना चाहिए। तुम्हारा मदरबोर्ड का कैपेसिटी है समझ लो जस्ट फॉर एग्जांपल 360 किलोबाइट पर सेकेंड, लेकिन तुमने जो हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दिया उसको तो MB में चाहिए। सो एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। फिर से देखना होगा कि ये कंपैटिबिलिटी होगा क्या राउटर के साथ, प्रोसेसर का और अदर्स का। सो सब कुछ है ना। तुम जितना भी चाहे कॉम्प्लेक्स करो तो उतना कॉस्टिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करने का क्या जरूरत है? तुम बोलो ना, तुमको जस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए और तो कुछ नहीं। समझ में आया? यस सर। ওকে, তাই চলো আজকে লিয়ে ঠিক আছে। কাল তো বোধহয় আছে না আমাদের?